बढ़ते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं फर्स्ट सेट और सेकंड सेट को सॉल्व करने वाला हूँ। सब्सिक्वेंट वीडियोस में आपको अपकमिंग जो सेट्स हैं अप टू 15 उन सबको अपन कवर कर लेंगे। ये वीडियो फर्स्ट वीडियो है जिसमें 1 2 अपन कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों प्रैक्टिस सेट 1 का। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन? सो इट इज एंटोनियो कोस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, Naomi Chushel area which was in the news recently due to the flash floods is located in which state and union territory? So इसका आंसर है दोस्तों लद्दाख। नाउ थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फोर्थ बिम्स्टेक सिक्योरिटी चीफ्स मीटिंग। So first is it held in Naypyidaw, Myanmar. Second, India was represented by Defense Secretary Girdhar Armane. So दोस्तों इसका आंसर है ओनली ए, राइट। सो इट हैपेंड इन Naypyidaw, Myanmar. नाउ फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, consider the following statement regarding the exercise of conquest held between 27th July to 9th and 9th August 2024. So this is whether it is true or false वो देखना है। So पहला है it is bilateral exercise between India and Mongolia, right? दूसरा स्टेटमेंट है it was held in Ulaanbaatar, the capital of Mongolia, right? So दोस्तों इसमें सिर्फ स्टेटमेंट बी सही है, it was held in Ulaanbaatar, capital of Mongolia. Now fifth question is, recently which country has become the first country in the world to prepare checklist for entire fauna? So दोस्तों this is our beloved India, our country. Now question number 6 दोस्तों, recently which organization has approved 1.5 billion loan to support India's green hydrogen initiative? So दोस्तों this is a World Bank. And seventh, who is the first Indian woman to conquer Mount Kinabalu, the highest peak in Malaysia? ठीक है, तो ये कौन है दोस्तों? ये है लक्ष्मी झा। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच यूनाइटेड नेशंस एजेंसी हैज रिसेंटली रिलीज्ड द एनुअल वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट? सो दोस्तों ये है UNODC। नाउ नॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। सो मैच द फॉलोइंग है दोस्तों, इसको आपको मैच करना है। सो दिस इज बी, ए का 2 तेलंगाना, जिशु देव वर्मा इज द गवर्नर, and for B it is 1 Sikkim, Om Prakash Mathur, and C is 4 Jharkhand is Santosh Kumar Gangwar, and D Chhattisgarh, which is now only option is left is Raman Dekha. So ये हमारा 9 का B है। अब बढ़ते हैं 10 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, वेयर वॉज द 16th एडिशन ऑफ India Mongolia joint military exercise nomadic elephant held? So दोस्तों ये है उमराव मेघालय के अंदर हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Who has launched the Idea for Life initiative in July 2024? So दोस्तों इसका आंसर है A, it was Union Minister of Environment and Climate Change, Minister भूपेंद्र यादव। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। वेयर विल सेकेंड स्पेस पोर्ट ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बी सेट अप? सो दिस इज अनडाउटेडली तमिलनाडु। Question number 13, which government agency has recently launched Sampurna Abhiyan? So दोस्तों this is C, नीति आयोग has launched the Sampurna Abhiyan. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सो 14 नंबर है, व्हाट इज जंक डीएनए? सो दोस्तों जंक डीएनए एंड डीएनए से रिलेटेड आपको आरएनए के ऊपर लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा है 78 बीपीएससी में। सो दिस इज basically a non-coding regions of DNA, so that's called junk is anyway, I hope you know that, right? So non-coding regions of DNA. क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सो वेयर वाज द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी inaugurated recently? So this is friends, New Delhi. Now
क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यू गवर्नमेंट फॉर्मेशन इन नेपाल। केपी शर्मा ओली has been appointed the Prime Minister of Nepal for second time. Statement 1. Second, the new government is a coalition of the Communist Party of Nepal, Unified Marxist-Leninist and Nepali Congress. Third statement है the formation of new government was triggered by the loss of trust vote by Pushp Kamal Dahal Prachanda in the House of Representatives. तो दोस्तों आपको पता है नेपाल में इलेक्शंस हुए थे, राइट? सो उसके बाद जो है ये बने थे, है ना? सो दिस इज करेक्ट इज 2 and 3, 16 का बी। नाउ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सो इसका 2 and 3 करेक्ट है ना? आगे बढ़ते हैं। विच सिटी वाज डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट प्लेस टू लिव इन द वर्ल्ड फॉर 2023 बाय इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट? सो दोस्तों 17 का अनडाउटेडली वियना, है ना? How many editions of nomadic elephant joint exercise have been conducted between Indian Army and the Mongolian Army till July 2024? Nomadic elephant याद रखिएगा, ठीक है? joint exercise। So दोस्तों this is C। 16। Now which country launched the world first banknote with the holography in 3D technology? So दोस्तों ये है जापान। Now question number 20 दोस्तों, where was the world's oldest known cave discovered? So this is discovered on the island of Sulawesi, Indonesia। Question number 21 की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। So ये है which country recently launched the advanced Earth observation satellite ALOS 4? So दोस्तों this is launched by Japan, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। सो विच इनिशिएटिव वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय यूनेस्को? सो दिस इज गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेलबिंग, ठीक है? सो अब बढ़ते हैं 23 की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 23 है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो और नाटो, ठीक है? सो दिस इज मिस्टर मार्क रूटे ना। इस अब बढ़ते हैं आगे। वेयर वो इसके पहले वैसे स्टोटलबर्ग थे, है ना? वो चेंज हो गए तो मार्क रूटे इज द नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। वो वेयर वॉज एशियाज लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैज बीन इनॉग्रेटेड? सो दिस हैज बीन इनॉग्रेटेड इन तुमकुरू, Karnataka। Now 25 number, who is the current chairman of International Solar Alliance INC? ठीक है, this is could be important। 25, this is Dr. Ajay Mathur। He has been appointed as the new chairman, current chairman of ISA, ठीक है? He is the current chairman। Who has become the world's first Miss AI? So this is Kenja Lely, ठीक है? Then 27, what is Antares recently seen in the news? So it is red supergiant star, ठीक है? Now question number 28, who took the prime minister oath for Nepal fourth term on July 15, 2024? So who has taken? Again Mr. KP Sharma Oli। Now question number 29, which country recently adopted a draft law criminalizing homosexuality in July 2024? तो दोस्तों this is Burkina Faso, ठीक है? आगे चलता है। Where did recent shooting incident involving former US President Donald Trump take place? ठीक है? So this has taken place in Pennsylvania, ठीक है? Now question number 31, which country recently became the first country in the world to impose livestock emission carbon tax? So दोस्तों कार्बन टैक्स किसने लगाया है? डेनमार्क ने, ठीक है? इम्पोज लाइवस्टॉक इमिशन और कार्बन टैक्स। अब चलते हैं 32 की तरफ। वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटेलिजेंस मैरिटाइम मिलिट्री एक्सरसाइज रिम ऑफ पैसिफिक हेल्ड? सो दोस्तों दिस हैज हैपेंड इन जापान, ठीक है? नाउ क्वेश्चन नंबर, आई बेग इट पार्डन दोस्तों, ये जापान नहीं है, ये यूएस है, ठीक है? दिस इज यूएस, ठीक है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
33 की तरफ। सो हु was recently appointed as new prime minister of Netherlands? So this is Dick Schoof, ठीक है। Now next, recently the landing test of reusable landing vehicle RLV Lex 02 has been successfully completed by ISRO. What is name given to RLV? So the name given to RLV is Pushpak. So next question दोस्तों 35 पे चलते हैं। Which state government launched Chief Minister माझी लड़की बहन scheme? माझी लड़की बहन scheme has been launched by Maharashtra, ठीक है। अब चलते हैं 36 की ओर दोस्तों। तो 36 है, आफ्टर हाउ मनी ईयर्स डिड इंडिया विन द फर्स्ट टाइटल इन आईसीसी वर्ल्ड कप? सो इंडिया हैज वॉन आफ्टर 13 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं दोस्तों। हु इनॉग्रेटेड द ग्लोबल इंडिया एआई समिट इन न्यू दिल्ली इन जुलाई 2024? So दोस्तों दिस इज इनॉग्रेटेड बाय अश्विनी वैष्णव। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। वेयर हैज इंडिया डिसाइडेड टू होल्ड 46th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग? सो कहाँ पे ये कमेटी मीटिंग होनी है दोस्तों? दिस इज टू बी हेल्ड इन इंडिया मंडपम, भारत मंडपम, ठीक है। नाउ हु बिकेम द 13th चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड फॉर द थर्ड टाइम? सो दोस्तों ये आप काफी न्यूज में था। मिस्टर हेमंत सोरेन हैज बिकम। Before this we had Champak Soren, and before that Hemant Soren was there, right? All those story must be covering. Now question number 40, ठीक है। So question number 40, who in which district of Maharashtra was the artillery museum was inaugurated? So दोस्तों this has been inaugurated in Nasik. Now who has been appointed as new chairman of the SBI? So who has been appointed? So it is C.S. Shetty. He is the new chairman of SBI, ठीक है। इसमें अरुंधति भट्टाचार्य पहले थी, रजनीश कुमार के भी पहले थी, ठीक है। और दिनेश कुमार खारा, आई एम नॉट श्योर, बट CS सेट्टी है ना, बाकी दो तो थे ना। अब आगे चलते हैं। विच टेनिस प्लेयर वॉज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच बैंक? बैंक ऑफ बड़ौदा। किन्हें अपॉइंट किया गया है दोस्तों? सो इट इज सुमित नागल, ठीक है। 42 इज डन। अब चलते हैं 43 की तरफ दोस्तों। वेयर इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैज बीन अनवेल्ड? सो दिस हैज बीन डन इन विजयवाड़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, हुज बायोग्राफी स्वामिनी आशा वाज रिसेंटली रिलीज्ड इन मुंबई? दोस्तों दिस इज आशा भोसले, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड द वाइस चांसलर ऑफ इंडियाज फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी? सो किन्हें किया गया है? सो दिस इज साइमन मैक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं दोस्तों। सो द पेंशन डिपार्टमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एन ऑनलाइन पोर्टल फॉर गवर्नमेंट रिटायरीज। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल? सो नेम ऑफ द पोर्टल इज भविष्य पोर्टल, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। वेयर वाज द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन द प्लास्टिक रिसाइकलिंग सस्टेनेबिलिटी held, ठीक है। So this has held in New Delhi. Where which city has been ranked? Question number 48 पे which city has been ranked the most expensive city in India as per Mercer cost of living rankings 2024, ठीक है। इंडिया के अंदर है ना। So this is मुंबई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। इन विच स्टेट हैज it been announced to build a T square on the lines of New York Times Square? So दोस्तों ये है तेलंगाना, है ना, वहाँ पे टी हब भी है, ठीक है। सो तेलंगाना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 जो सेट 1 का लास्ट क्वेश्चन है। एज पर द लेटेस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड SDG index 2023-24, what is the overall SDG score of India? So इंडिया का ओवरऑल स्कोर कितना है SDG में दोस्तों? सो ये 2023-24 के लिए दिस इज 71। सो दोस्तों ये था सेट 1। अब चलते हैं सेट 2 की तरफ। तो सेट 2 का दोस्तों पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है सेट 1 2 का, ये है
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। द वर्ल्ड फर्स्ट कंजर्वेशन, द वर्ल्ड फर्स्ट कंजर्वेशन and breeding center for the Asian king vulture species will be established in Maharajganj. So statement seems to be correct. The Asian king vulture is listed as a critically endangered on the IUCN red list of threatened species. So दोस्तों both the statement are true, ठीक है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच स्टेट द नालंदा यूनिवर्सिटी included in the world, in which year was the Nalanda University included in the World Heritage Site, ठीक है। सो दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सो दिस वाज 2016। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें इनकरेक्ट ढूंढना है हमें, ठीक है। सो वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट यूनिफाइड फॉर द लैंड, उसके थीम के साथ डेजर्टिफिकेशन एंड आउट, ठीक है। सो this seems to be correct. Next, International Olympics Day, everyone is welcome, seems to be wrong. This World Refugees Day, complete world one home, this seems to be wrong. So दोस्तों ये incorrect है, इसमें ढूंढना था। So incorrect is B, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Recently, former Netherlands Prime Minister Mark Rutte has been appointed as next Secretary General of NATO. Second, a statement that NATO was established on 4th April 1949, while its headquarters it's in Switzerland, ठीक है। सो दोस्तों इसमें सिर्फ जो है फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है। सो फॉल्स इज ओनली 2, ठीक है, ओनली बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, है ना। फॉल्स पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो अब चलते हैं 5 की तरफ। तो 5 है, विच whose appointment as a foreign secretary of India has been approved by the cabinet appointment committee headed by prime minister. So it is Vikram Mistry, ठीक है, फॉरेन सेक्रेटरी, है ना। इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं, लेता है आपसे एग्जाम, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस इंडेक्स 2024। इसमें अपने को इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है दोस्तों। सो दिस इज सी 1 and 2, द इंडेक्स रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक सीम्स टू बी रॉन्ग, ठीक है। एंड देन वी हैव दोस्तों 6 का as we know, so 1 is wrong and 2 also seems to be wrong, ठीक है। Singapore is top performing, followed by Denmark and USA on the readiness index, ठीक है। Artificial intelligence readiness index, so this seems to be correct, ठीक है। So ये हो गया। अब चलते हैं 7 की तरफ। इन विच स्टेट द बेंसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वॉज रिसेंटली इन द न्यूज इज लोकेटेड। सो दोस्तों बेंसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन उत्तराखंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच कंट्री हैज रिसेंटली डेजिग्नेटेड द यूनाइटेड स्टेट्स एज इट्स मेजर नॉन नेटो एलाई, ठीक है। सो दिस इज केन्या। कंसिडर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रिसेंटली श्रीनगर हैज बिकम द 4th इंडियन सिटी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। स्टेटमेंट 1 है, ठीक है। इसमें ट्रू ही ढूंढना है ना। सो दिस इज 1 सीम्स टू बी करेक्ट। सो जयपुर वाराणसी मैसूर हैव ऑलरेडी बीन रिकॉग्नाइज्ड, सो दिस स्टेटमेंट सीम्स टू बी रॉन्ग, ओनली 1, ठीक है। मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। मैं चाहूँ तो दे भी सकता हूँ, बट काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। क्विकली आपको रिवाइजन पर्पस के लिए, आई होप आपने पूरी ट्यूटोरियल पढ़ रखी हो, नहीं पढ़ी तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उससे देख सकते हैं। और बाकी जो वीडियोस है मैं वो भी कवर कर लूँगा उसमें 1 by 1, ठीक है। पहले एमसीक्यू के सीरीज को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 एंड वी हैव टू फाइंड अ ट्रू स्टेटमेंट आउट ऑफ इट, ठीक है। सो दिस इज if the report was released by World Bank, no, wrong. So again, in terms of foreign direct investment, India has slipped from 8th position in 2022 to 15th position in 2023. This is correct. Okay. Now, according to the report,
Foreign direct investment India was declined by 28% to 43 billion in 2023. This is again wrong, so we are left with B, only 2. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। सो 11 है दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें पूछ रहा है कितने स्टेटमेंट सही है, ठीक है। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू 18 लोकसभा, ठीक है। एमपी भरत मुनि बतावा प्रोटोम स्पीकर बाय speaker 18th Lok Sabha has been elected as unopposed. Om Birla is 16th elected twice. So दोस्तों, we have 3 statement correct in this. Now question number 12 की ओर बढ़ते हैं। Recently under whose chairmanship the committee has been constituted by the Ministry of Education, Government of India to conduct the examination through National Testing Agency in a transparent and smooth and fair manner. This is important. Question number 12. So this is Mr. K Radha Krishnan, ठीक है दोस्तों। So 12 का K Radha Krishnan is the answer. 13. Consider the following statement. Again true statement find करना है। Consider the following statements. Recently, former Philippines Prime Minister Philemon Yang has been elected the President of 79th session of United Nations General Assembly. So this seems to be wrong, ठीक है। Thailand has become first country in South Asia to legalize gay marriage, ये बिल्कुल ठीक है। So 13 is B, only 2. अब चलते हैं 14 की तरफ मित्रों। फुल फॉर्म ऑफ हाइड्रॉन इन द हाइड्रॉन प्रोजेक्ट इज, सो फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, इज इट्स हाई थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। सो 15 में है दोस्तों, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। सो द 15th G7 summit was held in Apulia, Italy. This is true. इम्पॉर्टेंट ऑल्सो है, इटली के अंदर जगह है एप्लिया, है ना। काफ़ी वो है नीचे वाले पॉइंट में है इनका, तो या वहाँ पे हुआ है। मैप पे आप चेक भी कर लेंगे एक बार, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया इज ऑल्सो मेंबर ऑफ, नहीं इंडिया कहाँ से मेंबर है, ठीक है। फर्स्ट जी समिट वाज हेल्ड इन 1975, सीम्स टू बी करेक्ट। सो 15 इज बी, ठीक है। 1 and 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। द Tharsis volcano which was seen in the news recently is related to Mars, ठीक है। चूज द, थोड़ा सा स्पीड में करते हैं दोस्तों, है ना। इसमें फॉल्स स्टेटमेंट चूज करने का है 17 में। सो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। नारंगी मिलिट्री स्टेशन गुवाहाटी बिकम द सेकेंड मिलिट्री, नो दोस्तों ये तो पहला है ना, ठीक है। सेकेंड तो भी एक जो बना है, ठीक है, न्यू वाला वो है, राइट। एंड सेकेंड इज आई गेस सो ये, सो सेकेंड आई गेस सो जयपुर मिलिट्री स्टेशन है, ठीक है। नारंगी वाज द फर्स्ट, इट्स इन गुवाहाटी आसाम, ठीक है। सो इसमें बोल रहा है चूज द फॉल्स, तो पहला तो सीम्स टू बी इनकरेक्ट, राइट, बिकॉज इट्स फर्स्ट, तो पहला ही फॉल्स है। अब चलते हैं 18 की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। रिसेंटली कोझिकोड जो है, कोझिकोड city of Kerala has been declared India first city of literature, correct है। Recently state government has approved the proposal to change the Joshima town of Uttarakhand to Kanchi Dham. No, this is incorrect. 18, so without a doubt 18 is only one is true, ठीक है। 19 की ओर चलते हैं। विच कंट्रीज गवर्नमेंट हैज साइंड एन 18 मिलियन एग्रीमेंट विद इसरो कमर्शियल आर्म न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड अंडर स्पेस मैत्री मिशन। सो दिस इज दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट with reference to the global livability index and we have to find the true one. So दोस्तों इसका आंसर है A, 1 and 2. The index is published by Economics Intelligence Unit. This is true, and it for the third consecutive term we are topped in this ranking on the global livability index, ठीक है। अब चलता है 21 की ओर। Much debated cannabis amphetamines and ecstasy related to, so this is related to drugs, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं दोस्तों। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, ठीक है। सो दोस्तों इसमें
जो सारे स्टेटमेंट हैं सारे ट्रू हैं। ये लोकेटेड है एल्टीट्यूड अबाउट 178 फीट above the Chenab river. It is part of Udhampur Srinagar Baramulla rail link project, and it is 1.3 kilometer long bridge located between Bakkal and Gauri in Raisi district of Jammu and Kashmir. So this all the three statements is correct. ठीक है, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, है ना। अब आगे चलते हैं दोस्तों। 22 is done. Now let's move to 23. ठीक है, इसमें कितने पेयर्स करेक्टली मैच वी नीड टू फाइंड आउट। सो दोस्तों इन दिस वी हैव 3 पेयर्स करेक्टली मैच्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। द असेंडिंग 24 में द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्टेट इन टर्म्स ऑफ विंड एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑन द ग्लोबल विंड डे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 एंड दिस इज कर्नाटका, देन तमिलनाडु, देन गुजरात। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर है ना, डिसेंडिंग नहीं है, इधर लिखा है असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 25, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉल्स फाइंड करना है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड Spain become the 100th country to join. Now this is wrong. ठीक है, then International Solar Alliance was established during COP15. This is also ठीक है, so false, both the statement are false. ठीक है, 25 is C. 26, consider the following state, इसमें correct find करना है regarding HOPEX exercise. So this HOPEX is the 4th edition of the exercise, which is true. It is Indian Navy and Egyptian. ठीक है, अब चलते हैं आगे। नागेश्वरा वन was in the recently news and this is a man probable suicide drone नागेश्वरा वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, recently WHO was designated which medical institution as WHO collaborating center CC for fundamental and literary research in traditional medicine. So this is a National Institute of Indian Medicine Heritage, हैदराबाद। ठीक है, अब चलते हैं 29 की तरफ दोस्तों क्विकली। रिसेंटली साइरिल रामाफोसा has been re-elected as the president of which country? It's South Africa. What is K218B, which was in recently news? So K21B, what is those? What K218B क्या है दोस्तों? So ये basically एक्सपो प्लैनेट है। ठीक है, very important. Which country will host the multinational air exercise Tarang Shakti 2024 in August? So which country will host? So this is India. ठीक है, what is Aedes albopictus recently in the news? So this is a mosquito. ठीक है, 33, Matsya 6000 was recently in the news, has been developed by which institute? So this is developed by National Institute of Ocean Technology, Chennai. ठीक है, where was the second annual meeting of the Initiative on Critical and Emerging Technology ICT between India and USA has held? So this has held दोस्तों in New Delhi. Digital health promotion scheme was in the news recently. So this is in news, was launched under which initiative? Ayushman Bharat Digital Mission. So digital health promotion scheme. ठीक है, question number 36, what is the planet 9 that was in a recently news? So planet 9 is a hypothetical planet in outer region of our solar system. आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 की ओर, और 37 क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड सिकल सेल डे 2024? सो दिस इज होप थ्रू प्रोग्रेस एडवांसिंग सिकल सेल केयर ग्लोबली। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 है, रिसेंटली विच कंट्री बिकम द फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू रिकॉग्नाइज गे मैरिज? सो थाईलैंड, अभी देख लिया था अपन ने। अगला है गौडबंदर फोर्ट was in recently in news. So किधर है ये? So friends, this is in महाराष्ट्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनहांसमेंट स्कीम रिसेंटली अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? सो दोस्तों इसका
है टू स्ट्रेंथन क्रिमिनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज को इंडिकोनोम इंडिकोनीमिया विच वाज इन न्यूज रिसेंटली। सो मित्रों, ये एक न्यू जीनस ऑफ गोमोफिनॉइड डायटम्स है। ठीक है, अगला है रिसेंटली अ टीम ऑफ वाइल्ड लाइफ experts has documented the presence of striped Cassian ichthyophysis spp for the first time in which national park? So this has happened in Kaziranga. ठीक है, मुदगल फोर्ट which was in recently news है ना, so in which state? So मुदगल फोर्ट is in Karnataka, right? Question number 44, which ministry recently launched the first national additive manufacturing symposium NAMS 2024? So this has been launched by Ministry of Electronics and Information Technology. Which organization recently released the State of Global Air 2024? ठीक है, so this is again friends, health effect institutions. The Ruang volcano, which was in recently due to news recently in news recently due to its eruption, is located in which country? So this is France, located in Indonesia. Recently, India announced medical e-visa facility for the citizens of which country? So Bangladesh. Okay. Question number 48, who won 2 bronze medal in Archery World Cup 2024? So in Archery World Cup, who has won, friends? So this is धीरज बोमादेवरा। एंड आर्चरी के ऊपर पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, शूटिंग था राइट, बट स्टिल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2024? क्या थीम है दोस्तों? सो थीम था लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। Question number 50, Khalubar War Memorial recently seen in news is located in which region of India? Ladakh. So दोस्तों, ये था सेट 1 और सेट 2 का सॉल्यूशन। आई होप आपको ये वीडियो रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प करेगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपकमिंग सारे सेट्स में इस पे कंप्लीट करने वाला हूँ, और बाकी जो करंट के सीरीज़ में चल रहा है ट्यूटोरियल वाला, वो भी कंप्लीट करने वाला हूँ। ठीक है, आपको वीडियो काफ़ी